ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 और 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। सानू किने बुलाया? उस आसमानी खुदा ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया और लिखा, जिन्हें तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसमें तुम इतनी जल्दी फिर करके और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और पौलुस एक जगह प्रचार करता है और वो क्या कहता अपने प्रचार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ सुसमाचार ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। क्या ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ नहीं है। वचन के पीछे लिखा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और अगे ये लिखे, परंतु यदि हम या स्वर्गदूत हम में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। लिखे, किसी नबी नू, किसी उपदेशक नू, इत्थे तक किसी स्वर्गदूत नू भी परमेश्वर दे सुसमाचार नू बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे इस तरह के हैं, बहुत सारे इदां दे लोग हैं जो सानू घबरा देने और सानू इस तरह दी गल्लां पुछदे हैं कि तेरा बपतिस्मा किस तरीके नाल होया आ, होद विच होया, पानी विच होया, चलदे पानी विच होया, यीशु दे नाम दे विच होया, या यहोवा दे नाम दे विच होया आ, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच होया आ। और लिखिया आ, बस यही गल्लां जिहड़ियां आ सानू कन्फ्यूजन कर दिंदियां आ। इस गल तो असीं घबरा जाने आ, इस तरह दी गल्लां करदे आ और सानू घबरा दिंदे आ। जिहड़े सुसमाचार है ही नहीं, असीं कहने आ ये सुसमाचार है कि असीं मसीह दे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ। ਸੁਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਸੁਣ के उन्होंने मन रहा है, क्योंकि उसकी शिक्षा ही इस तरीके की है। सुसमाचार क्या है, सानू क्या प्रचार करना चाहिए आ? सानू क्रूस ते चढ़े हुए यीशु का प्रचार करना चाहिए आ, सानू क्रूस की कथा का प्रचार करना चाहिए आ, सानू मसीह के क्रूस का प्रचार करना चाहिए आ कि यीशु मसीह साडे पापां दे लई क्रूस के उपर चढ़िया
और मारिया गया, दबिया गया और तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया। और लिखिया आ परमेश्वर पवित्र आ और मनुष्य पापी आ। पापी मनुष्य परमेश्वर का संबंध रख नहीं सकता, वो विनाश का हकदार आ। पापी इंसान परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और लिखिया है कि जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान का परमेश्वर के हक का बनाया है इंसान जो पापी हो गया और परमेश्वर तो दूर हो गया, जो कि स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता, तो परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया कि किस तरीके नाल फिर तो इंसान का जिहड़ा मिलाप आ वो परमेश्वर के नाल हो सकता है। और उन्हें अपने पुत्र नूं इस संसार दे विच भेजिया, वो साडे पापां नूं अपने उपर चुक के क्रूस के उपर मारिया गया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। यही असली सुसमाचार आ। क्या उन्हें अपना इकलौता पुत्र इस संसार को दे दिता ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही जो है असली सुसमाचार है कि आसमान का खुदा इस संसार दे विच एक इंसान बन के आ गया, प्रभु यीशु मसीह के रूप दे विच इस संसार दे विच आ गया। उन्हें साडे पापां नूं साडे गुनाहां नूं अपने उपर चक के और सानू बलिदान के द्वारा और सानू आज़ाद किया, सानू स्वर्गां दे हकदार बनाया। नहीं तो शायद साडा मिलाप पिता दे नाल नहीं हो सकता सीगा, साडा स्वर्ग दे विच जाना बड़ा मुश्किल सीगा। क्यों? क्योंकि मनुख पापी है और यीशु मसीह पवित्र है। चंगाई पिछला था यीशु पापियां दे लई मरिया और तीजे दिन जी उठिया। और इस पर विश्वास करिए, जदों असीं इहदे उपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह साडे लई मारिया गया और तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया, तां साडे लई उद्धार जिहड़ा आ वो संभव आ। साडे लई उद्धार जिहड़ा वो पक्का आ, साडे लई उद्धार जिहड़ा वो यकीनन आ। यही सुसमाचार आ कि यीशु मसीह साडे लई मारिया गया, साडे उद्धार नूं उद्धार दे काम नूं उन्हें क्रूस दे उपर पूरा किया। पापी इंसान नूं उहदे पापां तो उन्हें आज़ाद किया जदों आसमान के खुदा ते प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करता है। और असी किसी होर ही सुसमाचार दे विच उलझ गए आ। असी आम लोगों को जो नवे विश्वासी आ उन्हां नूं उलझा दिंदे आ। और वचन दे विच लिखिया जदों 1 कुरिन्थियां उहदा 17 आयत पढ़ते हैं तां उहदे विच लिखिया 1 कुरिन्थियां जदों उहदा असी पढ़ते हैं 17 आयत तां उहदे विच कुछ इस तरह करके लिखिया क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। इस जगह ते पौलुस कह रहा है अपने इस पत्र दे विच कि मैनू उस आसमान के खुदा ने बपतिस्मा देने लई नहीं भेजिया और मैनू तां सिर्फ उन्हें सुसमाचार सुनाने लई भेजिया आ। और साडा जिहड़ा मतलब आ वो सिर्फ आसमान के खुदा दे सुसमाचार नूं सुनाउणा आ, आसमान के खुदा दे क्रूस की कथा नूं सुनाउणा आ, क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करना आ कि यीशु किस काम ने संसार दे विच आया, उन्हें संसार विच क्या काम किया और वो कित्थे चला गया। इस संसार दे विच वो साडे पापां दे लई आया कि पापी इंसान नूं फिर तो पवित्र करके पापी इंसान नूं फिर तो उहदे पापां तो छुड़ा के और उहदा संबंध जिहड़ा आ उस परमेश्वर दे नाल मिला सके। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है और यह भी शब्दों के ज्ञान से अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह ने मैनू बपतिस्मा देने लई नहीं भेजिया, सुसमाचार सुनाउण नूं भेजिया आ। सुसमाचार सुनाउणा आ मसीह दा सुसमाचार, उहदे क्रूस दी कथा। और जदों 1 कुरिन्थियां उहदा 2 अध्याय उहदी 2 आयत दे विच पढ़दे आ तां उहदे विच लिखिआ है क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और इस जगह ते पौलुस कहता है कि मैं ठान लिया सीगा कि मैं सिर्फ उस आसमान के खुदा नूं मसीह यीशु नूं जो क्रूस पर चढ़ गया सीगा सिर्फ उन्हों ही जाना और उहदा ही मैं प्रचार करा। ये सुसमाचार साडे अपने मन घड़त ज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए। और लिखिया है क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच
यीशु मसीह वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं तुहाडे विच उस आसमान दे खुदा प्रभु यीशु मसीह दा जो क्रूस पर चढ़ गया सीगा सिर्फ उहदा प्रचार करूं और उहदे बारे दे विच मैं जाना। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। मैं जो प्रचार करता हाँ उहदे विच कुछ भी लोगों को लुभाउण वाला या लोगों को अपने वाल खिंचण वाला कोई भी इस तरह का प्रचार नहीं है। और मैं प्रचार करता हाँ तो मैं सिर्फ जो मैनूं बाइबल कहती है, जो मैनूं आसमान के खुदा ने वचन दिता, मैं उस वचन के अनुसार प्रचार करता हाँ। जिहदे विच इह नहीं है कि मैं लोगों को उस वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करता हाँ ताकि लोग खुश हो जाए, मेरा राज बढ़े, मेरी कलीसिया बढ़े। पर मैं राज बढ़ाना चाहना हाँ उस आसमान के खुदा दा। मैनूं अपनी कलीसिया तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पौलुस ने प्रचार किया मेरे ज्ञान दे विच कोई भी इस तरह की गल नहीं है, कोई भी मन घड़त स्टोरी नहीं है, कोई भी मेरा अपना ज्ञान नहीं है। तो मैं लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता। और मैं लिखा है कि मैं सिर्फ उस आसमान के खुदा दा क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करता हाँ। अगर मैं अपने मन घड़त ज्ञान के अनुसार प्रचार करता हाँ तो कोई होर सुसमाचार बाकी नहीं रह जाता कि जिहदे नाल क्रूस का मसीह का क्रूस जिहड़ा आ वो व्यर्थ हो जाता है, जिहदे नाल मसीह दे क्रूस की कोई भी कीमत नहीं रहिंदी, उहदा क्रूस जिहड़ा आ वो व्यर्थ हो जाता है। और लिखिया है कि मैं सिर्फ उस आसमान के खुदा दे वचन का प्रचार करता हाँ। मेरे प्रचार दे विच किसी नूं लुभाउण वाली या किसी नूं खुश करने वाली कोई भी गल नहीं हुंदी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण मेरे प्रचार दे विच क्या है उस आसमान के खुदा की सामर्थ, उस आसमान के खुदा की ताकत। और मैं उहदे विच इह साफ दिखाई दिंदा कि आसमान के खुदा का प्रचार करदा उहदी सामर्थ द्वारा भर के मैं प्रचार करदा हाँ। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर हो। साडा जिहड़ा ज्ञान आ किहदे पर निर्भर होना चाहिए आ, किसी इंसान के मनुष्य ज्ञान पर नहीं आ, उहदी लुभाने वाली गल्लां पर नहीं आ, उहदियां खुश करने वाली गल्लां पर नहीं आ, पर साडा जिहड़ा विश्वास आ वो परमेश्वर की ताकत के उपर, उहदी सामर्थ के उपर, उहदी पावर के उपर निर्भर होना चाहिए है। और सानू सिर्फ उस आसमान के खुदा के क्रूस नूं छड्ड के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस नूं छड्ड के, उहदी क्रूस की कथा नूं छड्ड के सानू होर किसी किस्म का प्रचार जिहड़ा आ वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार दे विच साडे लई आया, मरिया और क्रूस ते चढ़ाया गया और दब्या गया, तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया। और लिखा जो कोई उहदे पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा है परमेश्वर मनुष्य बन गया, प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के संसार में आया, वो 100% इंसान और 100% परमेश्वर है। वो लिखा परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि असी अपने आप नूं उहदे स्वरूप के अनुसार ढालीए। जो यीशु मसीह ने इस संसार के विच आके अपनी कुर्बानी दी, सानू चिन्ह पैड़ा दित्तियां और बहुत सारे सानू वरदान दिते। अगर असीं उन्हां वरदानां नूं मन के उहदे अनुसार चलदे हां और असीं अपने आप को यीशु मसीह के अनुसार ढालते हैं और असीं तां हर काम दे विच सफल होने आ। लिखिया तुसीं पूछने स्थिर ठहरोगे। ये अच्छी गल आ कि असीं अपने आप को आसमान के खुदा के अनुसार ढालीए, उहदे वचन के अनुसार ढालीए, उहदे वचन नूं जिउंदा त्यों प्रचार करिए, उहदे वचन नूं सुन के उहदे अनुसार असीं चलीए। अगर असीं चलदे हां तां अच्छी गल आ, पर असीं कुछ भुल तां नहीं रहे। क्या असीं कुछ भुल तां नहीं रहे? क्या असली सुसमाचार क्रूस की कथा है? असली सुसमाचार क्रूस की कथा है कि यीशु मसीह क्रूस के उपर मारिया गया, दब्या गया और तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया। और उस आसमान के खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जिन्हें अपनी जान साडे लई दे दी, क्या असीं उस खुदा नूं भुल तां नहीं रहे? पर इस जिन्हें अपनी जान साडे पापां दे लई दे दी। और है कोई संसार दे विच कि कोई अपनी जान तुहाडे लई देवे, पर इस संसार दे लोग तां तुहाडी जान लै सकदे आ पर बदले विच तुहाडी जान दे नहीं सकते। एक इंसान प्रभु यीशु मसीह, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन्हें अपनी जान इंसान दे लई दित्ती, उहदे पापां तो आज़ाद कीता आ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਯਕੀਨਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਮਸੀਹ ਪਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਕਰੂਸ ਪਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸ ਪਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਵਚਨ 30 ਨਹੀਂ 60 ਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਛਿੜ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰੂਸ ਪਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।